Good morning, everyone. This is Abhishek, and today in this video we are going to start a new lesson, that is rural livelihood. So let's understand what is rural livelihood. The people who lives in rural areas and earn money for their living is called rural livelihood. Got it? In the first chapter we have looked at how many kinds of diversity lies in India. So there are different people who has earned money in different ways. Okay, so we know India is a country of villages. 6 lakhs villages are there in India. Okay, so village people earn their money with uh, practicing agriculture and non-farming work too. Okay, so in this chapter we'll study that how village people earn their money. Okay, so here is a village name, Kalpattu village. Okay, in this village we'll see that how people earn their money. Got it? Kalpattu is a village that close to the sea coast in Tamil Nadu. कलपत्तू एक विलेज है जो तमिलनाडु के सी कोस्ट के करीब है. People here do many kinds of work as in other villages. Here too there is non-farm work such as making baskets, utensils, pots, bricks and bullock carts. Okay, so here you can see uh, a category of work that villagers do to earn money. Like in every village, people do non-farming work to earn money. Okay, these works are comes under the category of non-farming work. Farming work means agricultural work, and non-farming work means other works. Okay, so here you can see the group of work that like making basket. You can see in your village also people used to make baskets, utensils means pots. Okay, uh, pots of soil, bricks, bullock carts. These things people do make to earn money. Okay, these works are called non-farming work because it does not involve agriculture in this. Got it? So this is first category of work that people used to do to earn their livelihood. Got it? There are people who provide services such as blacksmith, nurses, teachers, washermen, weavers, barbers, cycle repairers, cycle repair mechanics, and so on. Okay, another category of work is here that people do in villages, like they provide services. Services means whenever you need something, like if you want to make a product of iron, then where do you go? You go to blacksmith. Okay, nurses are there in the house, village. Teachers are there, washermen, weavers. What they do? They provide service. They provide service. What is difference between service and goods? So goods are the product of primary or secondary. Sorry, goods are the product that people produce. Okay, and sell them to earn. But services are the work that we do for people's ease. Got it? So these things are into the category of services. So people living in village do services also to earn their livelihood. Got it? Okay, there are also some shopkeepers and traders. You can see in your village
shopkeepers and traders. Okay, shopkeep in whatever you need to buy something for your daily usage, you go to shopkeepers and traders also. Got it? In the main street, which look like a bazaar, you morning and snacks like vadai, bonda and Mysore peak in the evening. Okay, so इस गांव में जो हमने अभी तक पढ़ा कैटेगरी किसानों के लाइवलीहुड अर्न करने वालों की कैटेगरी कौन कौन सी है। पहला तो लोग नॉन फार्मिंग वर्क करके अपना जीवन यापन करते हैं। नॉन फार्मिंग वर्क मतलब वो काम जिसमें फार्मिंग नहीं होता है, जैसे कि बर्तन बनाना, यूटेंसिल्स बनाना, ब्रिक बनाना, किसी के घर में काम कर लेना, ब्लैक स्मिथ का काम करना, साइकिल रिपेयरर का काम करना, सिलाई बुनाई का काम करना। गॉट इट? टीचर, नर्स, ये सब क्या है? ये सब नॉन फार्मिंग वर्क है। ठीक है, ओके। अब दूसरे तरीके का एक जॉब होता है किसानों में, विलेज में, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है, जो है फार्मिंग वर्क, एग्रीकल्चरल वर्क। सो millions of people in villages, means across the India, millions of people get their employment from farming work. Okay, nowadays you can say that Indian economy is a agricultural waste economy. Got it? More than 50% of people employed in farming activities. भारत की 50% से ज़्यादा की आबादी जो है वो कहाँ काम करती है? खेतों में काम करती है। और खेत आपको कहाँ मिलेंगे? तो गाँव में। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक सेक्टर है जहाँ पे लोगों को क्या मिलता है? एम्प्लॉयमेंट मिलता है, और वहाँ से लोग अपनी क्या करते हैं? लाइवलीहुड मतलब रोजी रोटी कमाते हैं। तो आप इस पिक्चर में देख सकते हो, लोग पैडी ग्रोइंग का काम कर रहे हैं। पैडी ग्रोइंग मतलब धान की खेती कर रहे हैं चावल उगाने के लिए। पैडी ग्रोइंग की ये जो खेती है बहुत मेहनत वाली होती है। इट्स अ बैक ब्रेकिंग वर्क। इसको क्या करना होता है? आपको एक, अगर मैं सर्किल बनाऊं तो आपको पहले ही इसमें सीड्स डालने होते हैं, सीड्स को प्रिपेयर करना होता है, और फिर उसको ट्रांसप्लांट करके ये गीले मिट्टी में क्या करना होता है? उसको लगाना होता है। ठीक है, ये काम काफ़ी मेहनत वाला होता है। लोगों को इसको करने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है। सो यू कैन इमेजिन दैट हाउ हार्ड दीज पीपल वर्क to provide us food. Okay, but their condition are not so good, because if you see the period of farming employment, it is a periodic employment. अगर आप फार्मिंग का काम देखते हो तो यहाँ पे लोगों का जो खर्च है वो तो 12 ईयर्स तक रहता है, 12 मंथ तक रहता है, मतलब सालों भर लोग खर्च करते हैं। बट जो लोग फार्मिंग से जुड़े हुए हैं, द पीपल हु आर कनेक्टेड विद द फार्मिंग, उनको काम कितने दिन का मिलता है? ये अगर कोई धान की खेती कर रहा है तो वो जो किसान है वो कितने दिन काम करते हैं? तो 3 से 4 महीने। ठीक है, 3 से 4 महीने, और उसके बाद से इनको बैठना पड़ जाता है। जब एक बार खेत में धान लग गई तो अब ये 4 महीने बाद कटेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो लोग फार्मिंग में इन्वॉल्व होते हैं उनकी कमाई बहुत कम होती है और खर्च बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, कमाई बहुत कम होती है और खर्च बहुत ज़्यादा होता है। इसके वजह से क्या है, फार्मर जो है हमेशा डिस्ट्रेस में रहते हैं। फार्मर कहाँ रहते हैं? डिस्ट्रेस में रहते हैं। देखो, फार्मर कई तरीके के होते हैं। एक बहुत बड़े लैंड वाले फार्मर्स होते हैं जिनके पास ढेर सारा लैंड है, तो उनकी कमाई अच्छी खासी हो जाती है। लेकिन ये जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो क्या करते हैं? बड़े लैंड ओनर्स के खेतों में जाकर काम करते हैं एज अ फार्मर लेबरर वो काम करते हैं। तो ये लोग जो हैं इनकी स्थिति थोड़ी ख़राब होती है, बिकॉज इनको ही पीरियोडिकल एम्प्लॉयमेंट मिलता है। इनको सालों भर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, और सालों भर एम्प्लॉयमेंट नहीं मतलब ये सालों भर नहीं कमाते हैं, लेकिन खर्च इनका सालों भर होता है। ठीक है,
इसके वजह से क्या होता है, फार्मर्स जो हैं दे हैड टू गो टू सिटीज़, दे हैव टू गो टू सिटीज़। अब उनको अपना विलेज छोड़ना पड़ता है, अपनी अच्छी कमाई करने के लिए वो गांव को क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। गॉट इट? ओके, हियर यू कैन सी द फैक्ट that nearly two-fifth of the country of all rural families are agricultural laborers in our country। मतलब हमारी आबादी की 2/5 जो रूरल फैमिली है, गांव की जो आबादी है 100% की, उसमें 2/5 आबादी जो है वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं। एग्रीकल्चरल लेबरर का मतलब क्या हुआ, जो खेतों में काम करके वहाँ से मजदूरी करके अपना पैसा अर्न करते हैं। तो खेतों में काम कब रहता है, तो सीजन के अकॉर्डिंग रहता है। मतलब सालों भर खेतों में तो काम चलता नहीं है, एक बार काम हुआ उसके बाद से काम बंद। तो जो लेबरर्स होते हैं उनको तो बहुत नुकसान होता है, बिकॉज जिनका खेत है, जिनमें अनाज लगी है, उनको तो टोटल बेनिफिट होगा। लेकिन जो उसमें लेबर काम करते हैं, मजदूर काम करते हैं खेतों में, बड़े बड़े खेतों में, आपने देखा होगा गन्ना प्लांटेशन, पैडी ट्रांसप्लांट में जो लेबर इन्वॉल्व होते हैं, वो तो एक सीज़न में 1 महीना तक अच्छा कमाई करेंगे और उसके बाद से उन्हें बैठना पड़ जाता है अगले हार्वेस्टिंग तक। हार्वेस्टिंग हो जाएगी, फिर दूसरी क्रॉप लगेगी, तो उस क्रॉप के साथ फिर से उनको काम के लिए बुलाया जाएगा। तो इनको क्या बनाया जाता है, ओके। सो इसके वजह से इनको पीरियोडिक एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जिसकी वजह से इनकी कंडीशन क्या है, बहुत ख़राब हो जाती है। एंड दैट्स व्हाई दे आर फोर्स्ड टू लीव देयर विलेज एंड गो टू द सिटीज़ टू ओके। हियर यू कैन सी द सेकर, वो जो धान निकालने वाला मशीन है, ठीक है, पैडी को हार्वेस्ट करने वाला मशीन। अब देखो, ऑन बीइंग डेप्ट, कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े पट्टे जो होते हैं ज़मीन के, लाइक बिग लैंड ओनर्स से, वो क्या करते हैं, रेंट पे ले लेते हैं और रेंट पे लेके उस पर एग्रीकल्चरल वर्क परफॉर्म करते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ये होता है कि इंडिया की जो एग्रीकल्चरल फैसिलिटीज़ हैं अभी भी बहुत अप टू द मार्क नहीं है, उतना अच्छा नहीं है, जिसके वजह से इंडियन फार्मर्स टोटली डिपेंडेंट हैं किस पे, मानसून पे। किस पे डिपेंडेंट है, मानसून पे। गॉट इट? तो जिस साल मानसून अच्छा है तो चलो ठीक है, उस साल इनको क्या होता है, जितना पैसा लगाते हैं उससे थोड़ा बहुत पैसा अधिक कमा लेते हैं, तो फ़ायदे में रहते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मानसून फेल हो जाता है। क्या हो जाता है, मानसून फेल हो जाता है, और ये खेती करने के लिए पैसा लेते किससे हैं, मनी लेंडर से पैसा लेते हैं, क्योंकि खेती में बहुत सारा पैसा लगता है। लाइक सीड्स की ज़रूरत होती है, फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत होती है, पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत होती है। तो इतने सब चीज़ों को अरेंज करने के लिए इट्स रिक्वायर्स डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी, एंड वेयर दे बोरो द मनी फ्रॉम, दे बोरो दोज मनी फ्रॉम मनी लेंडर्स। गॉट इट? इफ़ द सीड्स आर नॉट of good quality, pest attacks their crop। देखो, apart from the failing of monsoon, other mishappenings happen to farmers। like अगर सीड्स अच्छे क्वालिटी की नहीं हुई या फिर खेत में कीड़े लग गए, तो इनका जो क्रॉप क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, और जितना इनका मनी इसमें इन्वेस्ट हुआ है वो निकल नहीं पाएगा। तो फिर इन पे क्या हो जाएगा, दे हैव टू रिटर्न द मनी टू मनी लेंडर्स, और मनी लेंडर्स जो पैसा देते हैं उस पर वो इंटरेस्ट रखते हैं। जैसे मान लो किसी को 100 रुपया दिया और लेने वाले ने कहा कि मैं आपको 4 महीने में लौटाऊंगा, तो उस पर उन्होंने क्या किया, इंटरेस्ट सेट कर दिया कि 4 महीने में जब आप लौटाओगे तो मुझे 125 रुपये चाहिए होगा। ठीक है, 125 रुपये चाहिए होगा। तो ये ब्याज हो गया 25 रुपये का, तो ये भी इनको लौटाना पड़ता है। अब जब इनका क्रॉप फेल हो जाएगा तो क्या होगा, they would not be able to return the even the capital of the money lender। जो
कैपिटल गुड हो, कैपिटल मनी होता है, जितना कि उन्होंने लिया होता है वो भी लौटाने के हालात में नहीं रहते हैं। इसके वजह से क्या होता है, किसान कर्जे में चले जाते हैं। ओके, मानसून भी ये हो जाता है, फेल होने की वजह से इनका क्रॉप फेलियर हो सकता है। ठीक है, व्हेन दिस हैपेंस फार्मर समटाइम्स अनएबल टू, ओके, व्हेन दिस हैपन, जब ऐसा होता है, जब क्रॉप फेलियर होता है तो इस किसान जो होते हैं वो पैसा रिटर्न नहीं कर पाते हैं मनी लेंडर्स को, जिनसे वो पैसा लेकर खेती करते हैं। क्रॉप फेल होगा नहीं, हो गया तो फिर ये क्रॉप को बेचेंगे नहीं, उपज हुई नहीं तो क्या करेंगे, इनको कोई फ़ायदा नहीं होगा, फिर वो मनी को लौटा नहीं पाते हैं और इसके वजह से वो कर्जे में चले जाते हैं। ठीक है, एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव, ये क्या करते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं होता, दे मे इवन हैव टू बोरो मोर मनी, इसकी वजह से इनको और भी मनी बोरो करना पड़ता है कि इस उम्मीद पे कि चलो अगले साल नेक्स्ट क्रॉप सीजन में अगर मैं कुछ मेहनत करूं और भगवान ने साथ दिया तो हमारा क्या हो जाएगा, फ़ायदा होगा, तो फिर मैं आपको रिटर्न कर दूंगा। ठीक है, इसी तरीके से होते होते किसानों पे डेप्ट बढ़ते जाता है, डेप्ट बढ़ते जाता है, और एक समय ऐसा होता है कि दे आर अनेबल टू रिटर्न द मनी, और इसी दबाव में किसान हमारे देश में सुसाइड करते हैं। ठीक है, तो हमारे देश में किसानों का जो सुसाइड रेट है बहुत ज़्यादा है, बिकॉज दे comes under the pressure of money lenders, because they borrow a lot of money from them and they are unable to pay those money to money lenders, and in the pressure of returning those money, farmers commit suicides. ओके, सो इंडिया में फार्मर सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है, लगभग एक दिन में 18 किसान हर रोज़ सुसाइड करते हैं। तो ये फार्मर सुसाइड क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द लोन दे आर नॉट एबल टू पे। देखो कितना आयरनी है, छोटा सा मनी, एक 20 से 30 हज़ार रुपये का जो डेप्ट होता है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपए का जो डेप्ट होता है, उसको नहीं चुकाने की वजह से जो इंडियन फार्मर्स होते हैं उन्हें वो सुसाइड कर लेते हैं शर्म से, या फिर जो कह लो प्रेशर से। और भारत में जो नवाब लोग हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जैसे विजय माल्या, नीरव मोदी, ये लोग 20-20 हज़ार करोड़ रुपए लेकर सरकार का नहीं चुका पाते और भाग जाते हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि ये फार्मर भले ही गरीब हैं लेकिन खुददारी इनमें भरी पड़ी है, लेकिन ये जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं ये बेशक बहुत अमीर हैं लेकिन इनमें गद्दारी भरपूर है। ठीक है, तो इसीलिए शास्त्री जी ने एक बार कहा था, जय जवान जय किसान, देश इन्हीं से चलता है। ओके, सो फार्मर सुसाइड कर लेते हैं डिस्ट्रेस में आकर। ठीक है, और ये भारत में ऑफन होते रहता है। गॉट इट। सो यहाँ पे हमने पढ़ा कि एग्रीकल्चरल लेबरर्स क्या होते हैं। यहाँ पे इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी मिलेगी कि भारत में एग्रीकल्चरल लेबरर्स की जो आबादी है वो कितनी है, लगभग 2/5 है, 2/5 है। ओके, गॉट इट, 2/5। ओके, भारत में जो फार्मर्स हैं उनकी टाइप्स क्या क्या है, तो देखो फार्मर्स की क्या टाइप है। एक तो होते हैं कुछ जो लोगों की खेतों में काम करते हैं, ठीक है, और कुछ होते हैं जो बड़े ज़मींदार होते हैं, जैसे कि इस स्टोरी में इस चैप्टर में पढ़ोगे रामालिंगम। ठीक है, और कुछ छोटे एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं जैसे तुलसी और शेखर। गॉट इट। तो इंडिया में हर 5वीं फैमिली जो है वो एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिली का मतलब हुआ कि वो परिवार जिसके पास या तो लैंड बहुत कम है, इतना कम कि
उस पर सिर्फ वो अपने कंजम्पशन के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्रॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, जितना वो खाते हैं उतना ही क्रॉपिंग कर सकते हैं, या फिर वो दूसरे लोगों की खेतों में जाकर काम करते हैं। ऐसा तो आपने अपने गांव में भी देखा होगा, कुछ जो खेतों में मजदूर होते हैं वो पहले आपके खेतों में काम करते हैं और वहाँ से कुछ पैसा कमाकर फिर उसे अपने छोटे छोटे खेतों में क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो भारत की हर 5वीं फैमिली जो है वो किस तरीके की इकोनॉमी में बिलीव करती है, किस तरीके की इकोनॉमी से बिलोंग करती है, तो एग्रीकल्चरल लेबरर फैमिली से बिलोंग करती है, ठीक है। ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन द पीपल्स फील्ड एंड अर्न मनी ऑफ लिविंग। इनका जो लेवलीहुड है वो किस पे डिपेंडेंट है, तो वो दूसरे लोगों के खेतों में काम करते हैं और जो भी कमाते हैं वही उनका कमाई होता है, ठीक है। गॉट इट। जो लैंडलेस होते हैं उनको क्या होता है ये तो मैंने बता दिया, जिनके पास ज़मीन नहीं होती है, बहुत छोटी ज़मीन होती है, उनके लिए और भी मुश्किल हो जाता है, ठीक है। ओके, इन द केस ऑफ स्मॉल फार्मर्स लाइक जो छोटे फार्मर का ये अगर हम केस लें तो वो बहुत ही मुश्किल से अपने ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं ये छोटी ये काम करके, मतलब खेतों में लोगों के काम करके और या फिर अपने छोटे फॉर्म में काम करके ये अपनी ज़रूरत को ही बहुत मुश्किल से पूरा करते हैं। तो फिर पैसा सेव कैसे करेंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, ओके, घर कैसे बनवाएंगे, खाने पीने में ही इनका पैसा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। इसलिए इनकी लाइफ थोड़ी डिस्ट्रेस में रहती है। ऐसे लोग कितने हैं इन इंडिया? 80% ऑफ फार्मर बिलोंग टू दिस ग्रुप। सोचो, इंडिया में 80% फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास या तो बहुत कम लैंड है या फिर लैंडलेस हैं और वो किस पे आश्रित हैं, लोगों के खेतों में काम करने को मजबूर हैं, ठीक है। और जो 20% फार्मर्स हैं उन्हीं के पास क्या है, अधिक ज़मीन है, मतलब बहुत बड़े बड़े ज़मींदार हैं। इनको एग्रीकल्चर से फ़ायदा होता है बिकॉज जो भी इनके खेतों में उपजता है उसे इन्हें मार्केट में बेच के ढेर सारा पैसा मिलता है और उस पैसे को ये दूसरी बिजनेस में भी लगा सकते हैं, शॉप खोल सकते हैं, मनी लेंडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं, फैक्ट्रीज बैठा सकते हैं, ठीक है। तो जो 20% जो भारत की किसान कम्युनिटी है, रूरल सेक्टर में जो फार्मिंग कम्युनिटी है, उसका जो 20% आबादी है वो क्या है, वो इसमें डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी अर्न कर सकता है। लेकिन 80% जो फैमिली है वो हमेशा ही डिस्ट्रेस में रहती है बिकॉज उसके पास खुद के नीड को भी पूरा करने का रिसोर्स नहीं होता। गॉट इट? ओके, सो आज यहीं तक हम रहने देते हैं। यहाँ पे एक नागालैंड का पिक्चर है, ये टेरेस फार्मिंग है। टेरेस फार्मिंग मतलब जो पहाड़ों के स्लोप को हम प्लेन बना देते हैं ऐसे काट काट के, ऐसे सीढ़ी की तरह, और जो फ्लैट लैंड होता है उस पर जो खेती करते हैं उसको टेरेस फार्मिंग करते हैं। तो जितने भी पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे लोग जो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, वो टेरेस फार्मिंग करते हैं। गॉट इट? सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगले वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ओके, आपको कुछ क्वेश्चन कर लेना है तो क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन कर लेना, दूसरा कर लेना, ठीक है, 2 क्वेश्चन कर लेना। थैंक यू वेरी मच। स्टे।